I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars। तो आज मैंने इनवाइट किया है अक्षय भसीन को, जो कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने जोश टेक्नोलॉजी में वर्क किया, उसके बाद InMobi में ये थे एंड राइट नाउ ही इज़ प्लेस्ड इन हॉटस्टार। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो के थ्रू, इस इंटरव्यू के थ्रू बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले वेलकम करते हैं हम अक्षय भसीन का। वेलकम अक्षय भसीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए आपने हाँ कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, सो आप अपनी जर्नी से स्टार्ट कीजिए कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया एंड इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज में आप गए, क्या क्या वहाँ के इंटरव्यू प्रोसीजर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाली मैम, थैंक यू मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। I would love to share everything. 2016 में I passed out from IMS Engineering College. I was a computer science engineering graduate. Like starting से ही I had a बहुत ही इंटरेस्ट था मेरा in programming and building apps, building software. तो like I was doing projects continuously and whenever I got a chance, मतलब जब हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, कोडिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करता रहा, तो लाइक इन दैट मैनर 4 years में मेरा कोडिंग स्किल गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो सबसे पहले आप थे जोश टेक्नोलॉजी में, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जोश टेक्नोलॉजी के केस में आपके पास कौन कौन से वहाँ पर राउंड्स हुए थे, कौन से टेक्निकल राउंड्स हुए थे, कोडिंग राउंड्स हुए थे, क्या लेवल था क्वेश्चंस का। इसके अलावा उसके बाद आप InMobi में गए, वहाँ पर आपके जो जो राउंड्स हुए इंटरव्यू में उनका क्या लेवल था, ये सब हमें डिटेल में बताइए प्लीज। पहला राउंड वाज MCQ पेपर where it had like 20-25 questions, all of them based on C++, theory as well as like output क्या आएगा, what is the error in the code, like that. Then the other written was that was online on AMCAT I think, and that was there were 2 coding questions, very basic ones. Programming language का choice था, like आप mention कर सकते हैं C++, Java, Python, anyway, but the questions were on trees, linked list, so they wanted you to write in C or C++ language. So I chose C++ language. Questions I don't remember exactly, but I can give a few examples like linked list reverse karo, maybe find the mirror image of a binary tree, questions like these. So you have to define like when you are writing code on that question paper, like for that question paper, you have to be very clear. मतलब one tip I can give for that round is if अगर आप बहुत ज़्यादा कटिंग करोगे अपने आंसर शीट में, तो that might be a bad sign. ज़्यादा इस चीज़ को मैटर करते हैं कि आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से लिख पा रहे हैं, यू नो द लाइक आपने क्वेश्चन को बहुत क्लीनली और नीटली सॉल्व किया है. So I think that was the major part. I think that which helped me get through that round. Then after that they invited me to the on-site round in Gurgaon, and वहाँ पे मेरे 3 राउंड हुए. तीनों राउंड्स वर लाइक आई थिंक कोडिंग राउंड्स थे, and all of them had questions on binary trees, linked list, and maybe one question on arrays. Yeah, and the last round was taken by the founder of the company, and so like वो काफ़ी लंबा राउंड चला मेरा, 2.5 hours I think, but it was a good discussion. Coding questions को भी था. Then he asked me some behavioral questions as well, like team building पे, and how do you manage a like big team, and how do you collaborate with people, questions like that, normal HR questions. So then after that I worked in Josh Technology Group for almost a year, and then I switched to InMobi. They will ask you like for freshers, mostly the focus is on like data structures and algorithms. I had 4 rounds, 3 of them were technical, 1 HR, and technical rounds were every technical round had some or the other algorithmic question based on like strings ho gaya, dynamic programming, I think trees and linked lists also one of the rounds. Then I also had 1 year experience in Josh Technology Group, so every interviewer, in the starting for like 5-10 minutes
हम लोग ने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात किया एंड आई एक्सप्लेन देम व्हाट आई डिड, व्हाट प्रोजेक्ट्स आई टुक. So one more thing, that I would like to mention here for all of you, like whenever people ask you to introduce about yourself, it's not like they want to know your father's name or like address details. They're like least interested. Everything is on your resume. सब कुछ आपने अपने resume में mention किया है. तो राइट, तो वेन एवर यू आर लाइक आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस हो, आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप ट्राई करो दैट यू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर करियर. तो वन एग्जांपल आई कैन गिव इज, आई पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द चैलेंजेस, हैकेथॉन में पार्ट लिया था हम लोगों ने, वेयर वी गॉट अ चांस टू गो टू बैंगलोर एंड वी वन लाइक 1,25,000 देयर. तो आई मेंशन दैट पार्ट एक्सप्लिसिटली. मतलब वहां पे मैंने फोकस करके बताया कि in all the interviews, and I still do that whenever I go to any interview. So I think that is a major point. Any achievements, anything that you feel आपने बहुत अच्छा से करा, you have to focus on that more so that the interviewer gets to know more about it. अपनी अचीवमेंट, अपने प्रोजेक्ट्स, लाइक जैसे आप लोगों ने 4 लोगों ने मिलके मे बी, और ये ब्रांच के स्पेसिफिक नहीं है, मतलब मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू बिल्ड अ प्रोजेक्ट. आप 3 लोग के साथ काम करते हो, आपके टीचर्स होते हैं आपके साथ, आपने कैसे कोलैबोरेट किया, आपने क्या क्या इनोवेशंस किए, राइट? तो वो सारा मैटर करता है. तो जैसे कि अक्षय आपने बताया कि अगर आप किसी नई कंपनी में जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपको मेन फोकस, वहाँ पे आपको अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो आपको मेन फोकस किस पे करना है? आपके अचीवमेंट्स पे. ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए. जैसे कि अक्षय ने बताया कि जब भी आप किसी प्लेसमेंट के लिए जाते हैं कंपनी में, तो आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे, बाकी सब चीज़ें तो ओब्वियसली आपके रिज्यूमे में लिखी हैं, बट आपको मेन फोकस कहाँ पे करना है? आपके अगर कुछ अचीवमेंट्स हैं उनको आप बताइए डिटेल में, जैसे कि अक्षय वसीम ने किया. तो जैसे कि अब आप हैं हॉटस्टार में प्लेस्ड हैं. हॉटस्टार एवरीबडी नोज अबाउट इट, सब बिग ह्यूज कंपनी. सो इसके बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या राउंड्स आपके हुए और आप क्या वहाँ पर आपका वर्क रहता है. Yes, so after in movie में I worked for 2.5 years, and then I like moved to Hotstar, and Hotstar में भी I'm in the advertisement team, Hotstar ads basically. So I'm currently working in the big data domain. Starting from in movie, I started working on the big data part. First of all, they had my phone screening round where they asked me some DS algo questions. हम लोगों ने मेरे प्रीवियस इन मूवी एंड जोश टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस के ऊपर बात करी, एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाट आई बिल्ट देयर. इन मूवी में देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज जिस पे हम काम करते हैं, तो व्हाई वी वर वर्किंग ऑन देम. अभी मार्केट में नया टेक्नोलॉजीज आ गया है, तो व्हाई नॉट मूव टू देम. तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने लगते हैं व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस. लाइक डीएस एल्गो तो रहता ही है, लाइक इट्स लाइक IQ टेस्ट, बट आई थिंक पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि अगर आपने एक कंपनी में 1 या 2 साल स्पेंड किया है, तो what significant things you have done. So as I mentioned earlier also, I explained the best parts of like what I built at in movie. So we discussed that, and then there was an on-site round. Given I was in Bangalore only, so I went on the on-site round. There were like I think 4 rounds, 3 technical and 1 HR round. Technical were like there. So given I was 3-year experienced, there was only 1 coding round, DS algo round, and then there was a DS algo round. First round they ask you 2 questions. It can be like depending on the interviewer, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बट द जनरल रेंज इज लाइक लिंक लिस्ट हो जाएगा, या फिर एरेस के ऊपर, या डायनेमिक प्रोग्रामिंग, दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. नॉट वेरी हाई लेवल, बट हाँ, there are good questions जहाँ पे you have to think through and you have to cover all the edge cases. So that matters, I think. Yeah. So first round was DS algo. Then there was a design round where like they asked me to like they can ask you anything about like, ठीक है, how do you think Twitter will work, or how do you think Facebook can work, or let's say if there was a Hotstar interview, they will ask you if you have to show live match to 20 million users, आप कैसे करोगे. So you have to like discuss about your techniques or all the frameworks you have worked on. How do you use that if you are building Hotstar? Things like that. So design discussion rounds में these things happen. So I think so second and third round was basically on this. Like there's one thing called as low level design, other is high level design.
So these two rounds, and then there was a HR round, and a VP round also, like where they asked me about behavioral questions, and like it's a leadership discussion basically. Company's leader talked to me and they explain about the company. They asked me about what I had done and how I can improve when I joined their company. ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे अक्षय ने बताया कि आपको थोड़ा सा खुद से भी इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, खुद से आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि उनकी कॉलेज की वेबसाइट्स पर आप जाइए, वहाँ से जाके आपको उनके कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स का पता चलेगा। एंड इसके अलावा आपके खुद के कॉलेज में भी वहाँ पर इन्विटेशंस आते हैं, तो आप जाइए। देखिए, मेरा कहना ये है कि आप चाहे जहाँ वहाँ पर जाके जीते नहीं, ठीक है, कि आप वहाँ पर जाके जीत के आए, ऐसा नहीं हो, बट एटलीस्ट आप जाइए, वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए। इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उनके थॉट प्रोसेस आपको पता चलते हैं। एंड इसके अलावा आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। तो एटलीस्ट इस चीज़ के लिए जाइए। कोई भी कॉम्पिटिशन का आपको पता चलता है तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वो इंटर कॉलेज है या फिर इंट्रा कॉलेज है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे अक्षय ने बताया कि अगर आपको कोडिंग कंपटीशन की अवेयरनेस चाहिए तो आपके पास कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको डिफरेंट कॉलेजेस के जो कंपटीशन है उनका भी आइडिया हो जाता है। एंड इसके अलावा ये खुद से भी आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अक्षय, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे उनके क्वेश्चन थे कि हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें जब वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर BCMC कर रहे हैं, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे वो फोकस करें? कोई एक लैंग्वेज को ही अच्छे से सीखें या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस पे हो जाएं? क्या चीज़, स्टूडेंट्स को इस चीज़ का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बताइए, आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए। कुछ कंपनीज में रिक्वायरमेंट ही होता है कि उनको जावा जिनको आती है उन्हीं को लेंगे, या फिर कुछ कंपनीज होती हैं जिनको नहीं मतलब रखता कि कोई भी लैंग्वेज आए, एंड हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड रहता है या इंडक्शन रहता है जिसमें वो ट्रेन करते हैं आपको। तो डिपेंड करता है। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप दो अप्रोच ले सकते हो, आप दो लैंग्वेजेस उठाओ। तो आई थिंक दो लैंग्वेज अगर आप चूज कर रहे हो तो वन आई वुड सजेस्ट जावा एंड अदर वुड बी C++। C++ क्या है कि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, हर कॉलेज सिखाता है। एंड देन कोडिंग कॉम्पिटिशन में काफ़ी हैंडी रहता है, यू आर इजीली एबल टू कोड इन C++। थोड़ा उसमें एफर्ट कम लगता है, राइट? तो एंड जावा में ये है कि मेनी कंपनीज, लाइक आई थिंक 70-75% ऑफ द कंपनीज जो हैं वो जावा के प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। एंड वो ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग जावा पे मास्टरमाइंड हो या फिर आपको बहुत कुछ आता है जावा पे, या आपने लाइक A ग्रेड सर्टिफिकेशन ले रखा है जावा पे। वो क्वेश्चंस वही पूछेंगे जो सबसे पूछते हैं, एंड दे आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, एंड दे आर बेसिकली लाइक टेस्टिंग कि आपको जावा कितने अच्छे से पता है। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके करना पड़ता है। अगर आप एक लैंग्वेज पे सीखना चाह रहे हो तो वो लैंग्वेज को आपको डेप्थ में जाके सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। आप जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे तो अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल लो, तो लेट्स से आप एक स्नेक्स एंड लैडर की गेम बना रहे हो जावा के ऊपर, राइट? तो आप उसको कैसे डिजाइन करोगे, आप कैसे कोड लिखोगे? तो जैसे आप वो प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे, तो आपको अपनी गलतियां भी पता लगेंगी। तो वो चीजें काम में आती हैं। जैसे आपने कहीं पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं यूज करा होगा, फिर आपको लगेगा कि मैं अगर यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग यूज करता तो मेरा कोड और ऑप्टिमाइज हो जाता, या मेरा एप्लीकेशन और अच्छे से परफॉर्म करता, राइट? तो आई थिंक इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी भी टाइम है, हाँ, अगर आप लोगों ने लाइक जावा पढ़ा है या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, तो आई थिंक आप उस पर एक प्रोजेक्ट पिक करके उसको इन डेप्थ अच्छे से करने की कोशिश करिए। एंड ट्राई करो कि लाइक बहुत लोग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डालते हैं, उन लोग का कोड देखो, उन लोग का थोड़ा काम समझो, तो उससे थोड़ा आपको इंस्पिरेशन मिलता रहेगा कि ठीक है, हम लोग कैसा कोड कर सकते हैं, हम लोग कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। और जॉब लेने से पहले आई थिंक एवरी कॉलेज देयर इज अ इंटर्नशिप पीरियड, अपने फाइनल ईयर या फिर प्री फाइनल ईयर। तो ट्राई करो कि आप किसी भी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करो जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट मिले, अच्छा प्रोजेक्ट मिले। अगर आप वहाँ उस कंपनी में जाके प्रोजेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में पता लगता है। बेसिकली वेन एवर यू गो टू द इंटरव्यू ना, तो आपको पता होगा कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लोगों ने कैसे काम किया होगा। तो आई थिंक इंटर्नशिप से बहुत हेल्प मिलती है। तो आई थिंक इंटर्नशिप पे भी फोकस करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप लाइक थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तो आप इंटर्नशिप कभी भी कर सकते हो। बट हाँ, इंटर्नशिप से हेल्प बहुत मिलेगा। अदर थिंग विल बी लाइक
आप कोई भी एक लैंग्वेज उठा लो एंड लाइक मास्टर दैट लैंग्वेज इन एंड आउट। अगर आप एक लैंग्वेज को पिक करके पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो तो दैट वुड बी लाइक कि मतलब आपको सारे पैटर्न पता है उस लैंग्वेज के। एंड ज़्यादातर केस ये होता है कि अगर आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज उठाते हो तो आप उन दोनों लैंग्वेजेस को रिलेट कर पाओगे। एंड आपको नए लैंग्वेज सीखने में थोड़ा ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होगा, बट जो आइडिएशन होता है या फिर जो उस लैंग्वेज का वर्किंग होता है वो दोनों का थोड़ा काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है। तो आई थिंक आप एक लैंग्वेज पे भी फोकस करके आप उसको मास्टर कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल लैंग्वेज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको पसंद है। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम कैन बी हैंडी, बट हाँ आप एक चीज पे फोकस करो और कोई भी एक चॉइस चूज करो और उस पर अच्छे से काम करो। सो थैंक यू सो मच अक्षय। आई होप स्टूडेंट्स आपको अक्षय के इंटरव्यू से बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला होगा। उन्होंने 3 कंपनीज़ का, अच्छी खासी बड़ी कंपनीज़ हैं ये, इन कंपनीज़ का आपको उन्होंने राउंड्स बताए कि कैसे आप इनमें प्लेस हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बहुत सारा यहाँ से आइडिया मिला होगा। तो थैंक यू सो मच अक्षय कि आपने थोड़ा सा इस चैनल के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपको अगर इसके अलावा कुछ क्वेरीज हैं अक्षय से, कुछ आप पूछना चाहते हैं इन कंपनीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।